السلام علیکم، سچ نیوز کے ساتھ میں ہوں اعتزاز نقی۔ وزیراعظم شہباز شریف جنیوا کانفرنس میں شرکت کے لیے روانہ۔ ٹویٹ پہ لکھا، یو این سیکرٹری جنرل کے ہمراہ لچکدار پاکستان پر بین الاقوامی کانفرنس کی مشترکہ میزبانی کروں گا۔ سیلاب متاثرین کا مقدمہ دنیا کے سامنے پیش کرنے کا موقع ملے گا۔ متاثرین کی بحالی کے لیے اٹھائے گئے حکومتی اقدامات پر روشنی ڈالوں گا۔ دنیا کی تاریخ میں انسانیت ایک اہم موڑ پر ہے۔ ملک بھر میں آٹا بحران نے شہریوں کو 2 وقت کی روٹی سے بھی محروم کر دیا۔ آئے روز آٹے کی قیمتیں بڑھنے سے شہری پریشان حال ہیں۔ چکی والوں کو بھی منمانیاں جاری ہیں۔ منافع خوروں نے دونوں ہاتھوں سے لوٹنا شروع کر دیا۔ مہنگائی کی چکی میں پستے عوام پر مہنگائی کا کڑا وار۔ مہنگائی کرتے عوام اب ہوئے آٹے کے لیے خوار۔ ملک بھر میں آٹا سونے کے بھاؤ بکنے لگا۔ غریب عوام کو اب 2 وقت کی روٹی کی بھی فکر ستانے لگی۔ گندم اور آٹا مہنگا ہوتے ہی منافع خوروں کی برائی دیکھتے ہی دیکھتے مہنگائی کا طوفان کھڑا کر دیا۔ شہر اقتدار میں فی کلو آٹا 160 روپے تو لاہور میں 150 روپے پر بکنے لگا۔ پشاور، کوئٹہ اور کراچی سمیت بڑے چھوٹے شہروں میں بھی آٹے کے نرخ ہاتھ سے نکل گئے۔ چکی والوں نے بھلا کہاں پیچھے رہنا تھا، وہ بھی بہتی گنگا میں ہاتھ دھونے لگے۔ چکی کا دیسی آٹا بھی فی کلو 160 روپے پر ملنے لگا ہے۔ 40 کلو چکی آٹے کا ریٹ 6400 روپے مقرر کر دی گئی۔ سب کے چہروں پر لکھا ایک ہی سوال، اب عوام کیا 2 وقت کی روٹی بھی نہ کھائے؟ آٹا بھی نایاب ہو گیا۔ شہری آٹے کے حصول کے لیے دربدر ہونے لگے۔ گھنٹوں کے صبر آزما انتظار کے بعد بھی آٹا ہے کہ ملتا ہی نہیں۔ یوٹیلیٹی سٹورز پر بھی آٹا کہاں ہے کی باز گشت سنائی دینے لگی۔ مہنگا ہی ملے تو صحیح۔ سونے کے بھاؤ بکتے آٹے کے نایاب ہونے پر عوام کی پکار۔ شہر شہر لگی مٹھی بھر آٹے کے حصول کے لیے لمبی قطار۔ عوام دن بھر ہوئے خوار مگر سب بیکار۔ کسی کا کام نہ آیا انتظار۔ باری آنے پر ہوا آٹا دینے سے انکار۔ ارباب اختیار سستا آٹے کے پوائنٹ بنا کر بری الزامہ ہو گئے، مگر سیل پوائنٹ کا کیا کرنا جب آٹا تو ہے ہی نہیں۔ دن بھر کی خواری مگر پھر بھی نہ آئی باری۔ بیشتر شہری خالی ہاتھ ہی گھروں کو لوٹنے پر ہوئے مجبور۔ دکانداروں نے بھی آنکھیں ماتھے پر رکھ لی۔ اول تو آٹا دینے سے پہلے دکھائے نخرے ہزار، مگر دگنا ریٹ پر دینے کو تیار۔ بس عوام ہی کے مقدر میں لکھ دیا گیا ہونا دربدر اور خوار، مگر سب کا ہے ایک ہی سوال، آخر اس سب کا کون ہے ذمہ دار؟ پشاور میں روٹی کی قیمت سن کر شہری دل تھامنے لگے۔ آٹے کی قیمتوں میں حالیہ اضافے کے بعد نان بھائیوں نے روٹی کی قیمت میں 10 روپے کا اضافہ کر دیا۔ پشاور میں روٹی کی قیمت ہاتھ جلانے لگی۔ چھوٹی سی روٹی کی بھی قیمت بڑھ گئی۔ نان بھائیوں کی منمانیوں نے شہریوں کو 2 وقت کی روٹی سے بھی محروم کر دیا، جس کے بعد 170 گرام کی روٹی 30 روپے میں فروخت ہونے لگی۔ قیمت کیوں بڑھائی؟ نان بھائیوں نے اپنا ہی رونا رو دیا۔ کہتے ہیں قیمت اس لیے بڑھائی کہ گندم اور آٹا دونوں ہی ہوئے مہنگے۔ اگر آٹا مہنگا ملے گا تو بھلا روٹی کیسے سستی دیں گے؟ ضلع انتظامیہ کی دوسری جانب ایک ہی تان ہے کہ روٹی کی قیمت 20 روپے ہے۔ نان بھائیوں نے اس کی قیمت میں از خود اضافہ کر رکھا ہے۔ کس کی سنیں اور کس کی کریں انسنی؟ جتنے منہ اتنی باتیں، مگر عوام کو گھاٹا ہی گھاٹا۔ ہر طرف ایک ہی پکار، آٹا 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 آٹا۔ حکومت کی جانب سے سستا آٹا سپلائی اسکیم میں شہریوں کی تذلیل کی جانے لگی۔ مرد و خواتین کے آٹا خریدنے کے لیے طویل قطاروں میں گھنٹوں انتظار کی اذیت سہنے پر مجبور ہیں۔ حکومت سپلائی میں 10 کلو آٹے کا تھیلا 648 روپے میں دستیاب ہے، جبکہ عام دکانوں پہ یہی 10 کلو آٹے 1600 روپے تک فروخت ہو رہا ہے۔ تفصیلات خرم ملک کی اس رپورٹ میں۔ گندم کی پیداوار میں خود کفیل کہلائے جانے والے ملک پاکستان میں آٹا نایاب ہونے لگا۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے شہری بھی آٹے کے حصول کے لیے ذلیل و خوار ہونے لگے۔ عام دکانوں پر آٹے کے من مانے ریٹ وصول کیے جانے لگے، جبکہ حکومتی آٹا سپلائی میں شہری لمبی لمبی قطاروں میں گھنٹوں انتظار کی اذیت برداشت کرنے پر مجبور ہیں۔
हुकूमत की जानिब से आटा सप्लाई के लिए शहर इक़्तिदार के मुख्तलिफ मुकामात पर मजमूई तौर पर 47 सप्लाई पॉइंट्स बनाए गए हैं, जहां पर हुकूमती नर्ख 648 रुपए में 10 किलो आटे का थैला तो दस्तयाब है, लेकिन सप्लाई पॉइंट्स पर शहरियों का जम्मे गफीर और लंबी लंबी कतारें बन जाने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का भी सामना है। मर्दों ख्वातीन की बड़ी बड़ी लाइनों में उम्र रसीदा अफराद भी खड़े हुए आटा खरीदने पर मजबूर हैं। ये बात है कि वाकई बहुत लंबी लाइन लगी हुई यहाँ की। हम तो सुबह से आए लेकिन मिल नहीं रहा, कि कहीं भी नहीं मिल रहा। बस ये कि सालन के ऊपर हाथ याद करें कि लोगों के ऊपर बहुत मुसीबत में आए लोग। काफ़ी लोग कोई बच्चे लेके आए, कोई काम छोड़ के आ गए, सारी बात है। दुकानों पे अगर लेने जाए तो वो कहते हैं हमें आप 750 रुपये हमें देंगे तो हम आपको दे देंगे। यहाँ पे हम सुबह 6 बजे से हम यहाँ पे खड़े हुए हैं। गाड़ियों वाले कहते हैं आप जो है ना टाइम की हिफाजत करें। खातून बच्चे सारे यहाँ लाइनों पे खड़े हैं, लोगों पे ऊपर से वो आटा भी नहीं दे रहे, बदमाशी भी कर रहे लोगों पे। वफाकी दारुल-हुकूमत की आम मार्केटों की दुकानों पर आटा महंगे और मनमाने नरखों पर फरोख्त किया जा रहा है, जहां फी 10 किलो आटे का थैला 1600 रुपए तक पहुंच चुका है। शहरियों का कहना है कि हुकूमत आम मार्केटों में भी आटे के नरखों को कंट्रोल करने की हिकमत अमली बनाए ताकि शहरियों को रिलीफ मिल सके। कैमरामैन अरशद सत्ती के साथ खुरम मलिक, सच न्यूज़, इस्लामाबाद। बूरेवाला में महंगाई का तूफान थम न सका। नान भाइयों ने रोटी के मनमाने निर्ख मुकर्रर कर लिए। गरीब शहरी के लिए बच्चों को पेट भर के खाना खिलाना मुश्किल हो गया। करीम सैफी की रिपोर्ट। मुल्क भर की तरह बुरेवाला में भी महंगाई का तूफान थम न सका। अशियाए खुर्दोनोश की कीमतों की ऊंची उड़ान के बाद अब नान भाइयों ने नान और रोटी की कीमतों में होशरुबा इजाफा कर दिया है, जिससे आम शहरी शदीद मुतासर हो रहे हैं। एक तरफ सुई गैस की लोड शेडिंग का दौरानिया 20 घंटे तक जा पहुंचा तो दूसरी तरफ आटे का बहरान। रोटी नान के पॉइंट्स पर रोटी 15 से 20 रुपए जबकि नान 30 से 35 रुपए में फरोख्त हो रहा है। 35 रुपए का नान मिल रहा है, ना इतने बिजली आ रही है, ना इतने अपना गैस आ रही है। शहरियों ने डीसी विहाड़ी और असिस्टेंट कमिश्नर बुरेवाला से मुतालबा किया है कि प्राइस कंट्रोल कमेटियों को फाल किया जाए ताकि खुद साख्ता महंगाई पर काबू पाया जा सके। कैमरा टीम के हमरा मोहम्मद करीम सैफी, सच न्यूज़, बुरेवाला। महंगाई का तूफान बहावलपुर के शहरियों का इम्तिहान लेने लगा। ब्रायलर की कीमत ने लंबी छलांग मार ली। मुर्गी का गोश्त 555 रुपए फी किलो तक फरोख्त होने लगा। शहरी बिलबिला उठे। मलिक इकबाल की रिपोर्ट। बहावलपुर ब्रायलर मुर्गी के गोश्त की कीमतों को पर लग गए। रोजाना की बुनियाद पर मुर्गी के गोश्त की कीमत में इजाफा हो रहा है। मुर्गी के गोश्त की कीमत 555 रुपए किलो हो गई, जबकि एक हफ्ता पहले 400 रुपए किलो थी। घर से 500 रुपए लेकर आया हूँ, ये 500 का 1 किलो भी नहीं आया। आज से एक हफ्ता पहले 400 रुपए किलो थी, पहले 350 थे, 380, आज तो 500 भी क्रॉस कर गया। ये तो गरीब आदमी अब मुर्गी तो दूर होता जा रहा है, सब्जी से भी दूर होता जा रहा है। गरीब आदमी क्या करेगा? सब्जी दाल हर चीज़ महंगी है, और ये चिकन जो सस्ता था गरीब आवाम के लिए, बीफ के रेट तो पहले ही बहुत हाई हैं। ये चिकन था एक सस्ती सहूलत, आवाम को जो है खुराक मुयसर हो जाती थी बच्चों को, अब वो खुराक भी मुयसर नहीं हो सकती। शहरियों का कहना है कि मटन बीफ तो पहले ही पहुंच से दूर है। एक मुर्गी का गोश्त ही था जो आम आदमी की दस्तरस में था, वो भी महंगा होने की वजह से कुव्वत खरीद से दूर हो गया। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि मुर्गी के गोश्त की कीमत को कम करके अवाम को रिलीफ फराम किया जाए। कैमरा टीम के साथ मलिक मोहम्मद इकबाल, सच न्यूज़, बहावलपुर। मुल्क भर में कुछ भी सस्ता न रहा। महंगाई माफिया ने गरीब आवाम की जेबों पर वार कर दिया। अशियाए ज़रूरिया से लेकर हर चीज़ महंगी हो गई। सस्ते और बचत बाजार भी सस्ते न रहे। महंगाई का होशरुबा तूफान आम आदमी को कर दिया परेशान। मुल्क भर में कुछ भी सस्ता न रहा। क्या आम बाजार, क्या बचत बाजार और क्या इतवार बाजार, सब में एक ही बाज़गश्त, महंगाई महंगाई और महंगाई। मुनाफाखोर और महंगाई माफिया ने ऐसे पंजे गाड़े के शहरी घरों को खाली हाथ लौटने पर हुए मजबूर। मुल्क में बढ़ती महंगाई के सबब दालें, अंडे, गोश्त और सब्जी समेत तमाम ही अशिया की कीमतों को पर लग गए। नए साल के आगाज पर हुकूमत के पेट्रोल की कीमत में इजाफे के साथ शहरियों के लिए सस्ते बाजारों से खरीदारी करना भी मुहाल हो गया। इतवार बाजार में दाल, चावल, घी और तेल के निर्ख हो गए दुगने तो सब्जियां और फल भी सोने में तोले जाने लगे। दूसरी जानिब अब शहरी मुर्गी की सूरत सस्ता गोश्त खाने से भी हुए महरूम। मुर्गी के गोश्त की कीमत भी 700 का हिस्सा छूने के करीब है। अंडों का तो मत ही पूछिए। दर्जन अंडे के निर्ख
नरख 300 के करीब पहुंच गए। अदरक और लहसुन 350, प्याज 210 रुपए फी किलो में बिकने लगे। फल भी आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गए। अब हम क्या खाएं? बाजारों से खाली हाथ और खाली जेब लौटते शहरियों का बस एक ही सवाल। कराची में महंगाई उरूज पर पहुंच गई। दूध और आटे के बाद चिकन भी गरीब आवाम की दस्तरस में न रहा। वजह जानते हैं अपनी नुमाइंदा किरण फातिमा से। जी किरण। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह कराची में भी महंगाई उरूज पर है। सब्जियों और दूध की कीमतों के बाद अब जो है वो चिकन की कीमत में भी होशरुबा इजाफा हो चुका है। 480 से बढ़कर 580 कर दी गई है। हमारे साथ दुकानदार मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं कि क्या वजह है कि जो मुर्गी की कीमतें हैं उसमें इतना ज़्यादा इजाफा हुआ है। जी मुझे ये बताइएगा कि मुर्गी की कीमतों में इतना ज़्यादा क्यों इजाफा हुआ है और आपका कारोबार इस वजह से कितना मुतासिर हुआ है? आपके सामने ही है, जो लोगों की कुफ्ते खरीद भी नहीं है। 580 रुपये 570 रुपये हमें पड़ रही है, 580 हम बेच रहे हैं, फिर भी आवाम जो है ना खरीद नहीं पा रही। इसकी वजह क्या है, क्यों अचानक जो है वो कीमतें बढ़ चुकी हैं? बस फीड का मसला आ रहा है, सोयाबीन का बोले मसला है, जिस वजह से मुर्गी जी की ग्रोथ नहीं हो रही, इस वजह से मुर्गी का रेट बढ़ रहा है। और दूसरा कमिश्नर कराची जो है उनका रेट 400 रुपये है, पिछले 6 महीने से 400 है। जी बिल्कुल, इनका यही कहना था कि जो फीड है वही आगे से महंगी आ रही है, जिसकी वजह से ये लोग भी जो है महंगा बेचने पर मजबूर हैं। ताहम उन्होंने हुकूमत से यही अपील की है कि जो आम आवाम है उसके साथ साथ इनका भी ख्याल किया जाए ताकि आम आवाम को भी रिलीफ शुक्रिया मिले। किरण। प्राइस कंट्रोल कमेटियां गैर फाल, हर चीज के रेट आसमानों से बातें करने लगे। प्राइस कंट्रोल कमेटी दफ्तरों में बैठे तनख्वाह ले रहे हैं, कोई बाहर निकलकर रेट चेक नहीं कर रहा। शहरी परेशान हैं। राना अतीक इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जी अतीक, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त महंगाई ने अपने पर फैलाए हुए हैं। मेरे साथ इस वक्त शहरी मौजूद हैं जो फैसलाबाद प्राइस कमेटी के रुकन भी हैं। मैं उनसे जानता हूं कि आया इस वक्त क्या पोजीशन है, आपकी जो मीटिंगें हैं इसमें कोई हल नहीं निकलता कि आवाम को किस तरह आसानी वाली ज़िंदगी दी जाए। मैं खुद जनाब प्राइस कंट्रोल कमेटी फैसलाबाद का मेंबर हूँ। इस सिलसिले में 3-4 दफ़ा जब हमारी मीटिंग हुई है तो मैंने डीसी साहब और मजिस्ट्रेट और मुतल्लिका अहकाम को कहा है कि कोई भी रेट आपका ना दाल का, ना आटे का, ना चीनी का और ना घी का कहीं भी एक नहीं है। सुबह रेट और होता है, दोपहर को रेट और होता है, शाम को और रेट होता है। इसके लिए खुदारा कुछ ऐसी मैकेनिज़्म बनाए कि लोगों को आसानी हो। और आपने जो आटे के जो पॉइंट्स बनाए वहाँ तो आटा अवेलेबल ही नहीं है। जी, जैसा कि आपने ज़रीफ़ खान साहब की बात सुनी कि मैं ख़ुद भी रुकन हूँ प्राइस कमेटी का, लेकिन हमारी भी कोई नहीं सुनता कि हम कोई ऐसा सिलसिलाकार नहीं बना पा रहे, या हमारा डीसी या अदर जो महकमाना बंदे हैं वो ऐसी बात नहीं मानते जिससे महंगाई पर कंट्रोल किया जा सके। घंटों की सतह पर महंगाई बढ़ रही है। आटे की बात की जाए तो आटा तो वैसे इस वक्त आवाम के लिए ज़लालत वाला मामला बना हुआ है। मेरी गवर्नमेंट से गुजारिश है कि कोई अच्छे तरीके से कम काम बहुत शुक्रिया राना अतीक। गंदम बहरान को कम करने के लिए पंजाब हुकूमत का बड़ा इकदाम। पंजाब हुकूमत ने फ्लोर मिल्स का गंदम का यौमिया कोटा दोगुना कर दिया है। गंदम और आटे के बहरान के खात्मे के लिए वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही के हंगामी इजलास में किए बड़े बड़े फैसले। सोमवार से फ्लोर मिल्स को उनके अपने मुतालबे से ज्यादा 26,000 टन सरकारी गंदम जारी कर दी जाएगी। वज़ीर आला चौधरी परवेज इलाही कहते हैं कि पंजाब भर में रोजाना 10 किलो आटे के 18,40,000 थैले सरकारी रेट पर दस्तियाब होंगे। सरकारी कोटा बढ़ने से निजी गंदम और आटे की कीमतों में नुमायां कमी आएगी। मुशीर अमूर कश्मीर कमर जमान कायरा का मौजूदा दौर हुकूमत में महंगाई बढ़ने का बरमला इतराफ। हमारे दौर हुकूमत में महंगाई बढ़ी, देखना होगा कि महंगाई का जिम्मेदार कौन है। इस हुकूमत ने ऐसे फैसले किए जिससे महंगाई हुई, साथ ही महंगाई का जिम्मेदार इमरान खान को भी ठहरा दिया। कहा इमरान खान के दौर पर महंगाई उरूज पर थी, इमरान खान ने मुल्क को आलमी सतह पर तनहा किया, वो इदारों के खिलाफ बातें कर रहे हैं। अगर हम इमरान खान से हुकूमत न लेते तो मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचता। लेकिन रहनुमा राना मशहूद का पंजाब में कप्तान की नंबर गेम पूरी न होने का दावा। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा इमरान खान के खिलाफ पार्टी में भी नफरत मौजूद है, उन्हें पता है कि नंबर्स पूरे नहीं हैं इसलिए वोट नहीं ले रहे। ये शख्स वो है जिसने नौजवानों को अखलाकी पस्ती में धकेल दिया, इसने मुल्क में बदतमीजी को परवान चढ़ाया। इन्होंने बिल्कुल सरासर इनकार किया, वो इसलिए किया कि इनके पास नंबर गेम पूरी नहीं है, इनके लोग इनसे नाराज हैं। तो ये एक ऐसा दरिंदा है जिसने कुछ नहीं छोड़ा,
इसकी पार्टी में इसके खिलाफ नफरत मौजूद है, इनको पता है कि ये वोट नहीं ले सकते, इसलिए वोट से भाग रहे हैं। पीटीआई रहनुमा आटा बहरान को लेकर इत्तेहादी हुकूमत के खिलाफ फट पड़े। फवाद चौधरी कहते हैं कि पहले ही खबरदार कर दिया था कि दिसंबर में आटा बहरान आएगा। मुसरत चीमा बोली आटे के लिए आवाम को मरने को ही डिफॉल्ट कहते हैं। आटे बहरान पर कप्तान के खिलाड़ी भी खुलकर मैदान में आ गए। तर्जुमान तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी ने दावा किया कि जुलाई में ही खबरदार कर दिया था, दिसंबर में आटे का बदतरीन बहरान पैदा होगा। सोशल मीडिया की वेबसाइट ट्विटर पर फवाद चौधरी ने हुकूमत के खूब तल्ले लिए और कहा कि बदकिस्मती से हुकूमत और इदारे कई माह से सिर्फ इमरान खान का सियासी कद कम करने की नाकाम कोशिश में मसरूफ रहे और अब बाकी मामलात की तरह आटे का ये बहरान भी हाथ से निकलता जा रहा है। तर्जमान वजीर आला और पंजाब हुकूमत मुसर्रत जमशेद चीमा ने भी हुकूमत पर खुलकर तनकीद कर दी। बोली अगर एक ज़राई मुल्क में आटे के लिए अवाम मरने लगे तो इसे ही डिफॉल्ट कहते हैं। आटे के लिए एक शहरी की जिंदगी जाने का हवाला देते हुए कहा कि कल सिंध में एक शहरी सस्ता आटा लेते हुए भगदड़ मचने से जान की बाजी हार गया। हुकूमत पाकिस्तान अमली तौर पर दिवालिया हो चुका है। जाली हुकूमत के नाअहल वुज़रा के चेहरे पर कोई शर्मिंदगी नहीं। अब महंगाई नहीं ठुकाई मार्च हो सकता है। सियासी पंडित शेख रशीद ने इत्तेहादी हुकूमत को तंबीह कर दी। ट्वीट में लिखा 9 माह की तबाही और डिफॉल्ट से बचने के लिए रोड मैप का मुतालबा कर दिया है। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने खबरदार करते हुए कहा कि अब महंगाई की जगह ठुकाई मार्च हो सकता है। 2 वक्त की रोटी के लिए पहली शहादत मीरपुर खास में हो गई है। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने ट्विटर पर लिखा कि ज़र मुबादला के ज़खायर 4 से 5 अरब डॉलर रह गए, जो 20 रोज से कम का इम्पोर्ट है। 76 रुकनी काबीना एक आटे का थैला नहीं दे सके। कुछ दिनों में इलेक्शन शेड्यूल देना होगा वरना तबाही है। शेख रशीद ने हुकूमत से 9 माह की तबाही और डिफॉल्ट से बचने का रोड मैप भी मांग लिया है। पीटीआई रहनुमा मौजूदा हालात से मायूस मगर बेहतरी की उम्मीद। ट्वीट में बाबा बुल्ले शाह का कलाम लिखकर मायूस अवाम को भी उम्मीद दिला दी। पीटीआई रहनुमा और साबिक वजीर खजाना असद उमर ने चारों तरफ से बहरानों में घिरे अवाम को दिलासा दे दिया। असद उमर ने ट्वीट में लिखा कि आजकल चारों तरफ मायूसी छाई हुई है, लेकिन जैसा बाबा बुल्ले शाह ने कहा है कि चढ़दे सूरज ढलदे वेखे, बुझे दीवे बलदे वेखे। अल्लाह की जात बुझा हुआ दिया भी रोशन कर सकती है। इंशाअल्लाह ये मुल्क इन मुश्किलात से निकलेगा और फले फूलेगा। वफाकी वजीर खजाना इसहाक डार ने ज़र मुबादला ज्यादा होने का दावा कर डाला। कहते हैं पाकिस्तान की ज़र मुबादला के ज़खायर 4 नहीं 10 अरब डॉलर्स हैं। इसहाक डार ने एक बयान में कहा कि पाकिस्तान के वाजिब अदा कर्ज वक्त पर वापस कर रहे हैं। पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर बहुत जल्द दोबारा मुस्तहकम होंगे। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर 4 नहीं 10 अरब डॉलर्स हैं। कमर्शियल बैंक्स के पास मौजूद 6 अरब डॉलर्स भी पाकिस्तान के हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने हुक्मरानों पर तनकीद के निश्तर चला दिए। कहते हैं हुक्मरानों ने पाकिस्तान को दुनिया में तमाशा बना दिया। पाकिस्तान में हर 5वां शहरी डिप्रेशन का शिकार है। इसहाक डार ने डॉलर की कीमत कम करने का दावा किया था, लेकिन डॉलर को पर लग गए। हिरोशिमा तबाह हो गया, दोबारा आबाद हो गया, लेकिन ये जो 3 एटम बम हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं इस वक्त, एक का नाम शहबाज शरीफ, एक का नाम जरदारी और इसका नाम इमरान, ये 3 आदमी ट्राई का पाकिस्तान के लिए एटम बम से ज्यादा खतरनाक है। हमारी तबाही, हमारी बर्बादी इनकी वजह से है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम 15 जनवरी को होने वाले बल्दियाती इंतखाबात में कामयाबी के लिए पुरुम्मीद। कहते हैं अब हम बताएंगे कि कराची में क्या होना है। अब इस शहर के लोग लावारिस नहीं रहेंगे। साजिशों का अमल कराची में जारी है। तमाम साजिशों को बेनकाब करेंगे। 3 दफ़ा इलेक्शन मुलतवी हुआ है और तीनों मरतबा इलेक्शन मुलतवी होने के नतीजे में जो उम्मीदवार हैं, कैंडिडेट्स हैं, काउंसलर्स हैं, यूसी के वाइस चेयरमैन, चेयरमैन हैं, इतनी बड़ी तादाद में लोग हैं, इन्होंने अपने वसाइल लगाए हैं, आवाम से रब्ता किया है और वो सब इन्होंने दरिया बुट करवा दिया। तो ये तो वैसे भी एक गैर जमहूरी तरीक़ेकार है कि इस तरह से एक हमारा आइनी और कानूनी हक़ है, उससे हमें रोका जाए। पीपल्स पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड चूँकि अच्छा नहीं है और 2009 से 2015 तक पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम ने मिलकर वफाक में, सूबे में हुकूमत की, गवर्नर भी एमक्यूएम के थे,
اور دونوں نے مل کر جتنے بھی قوانین ہو سکتے تھے جس میں کراچی کے اختیارات چھینے گئے تھے، خصوصاً یعنی کراچی سمیت سندھ کے بلدیاتی اداروں کے اختیارات، اس سب میں دونوں شریک جرم تھے۔ کراچی کے باغ جناح میں آج جماعت اسلامی عوامی قوت کا مظاہرہ کرے گی۔ نمائندہ سچ ٹی وی عطا حسین اس وقت جماعت اسلامی کے جلسہ گاہ میں موجود ہیں، ان سے مزید جانتے ہیں۔ جی عطا حسین۔ جی دیکھیں، کراچی کے باغ جناح میں جماعت اسلامی جلسہ کرنے جا رہی ہے اور اس وقت میں باغ جناح میں موجود ہوں۔ تمام تر تیاریاں جو ہیں وہ مکمل کر لی گئی ہیں، بس اب سے کچھ ہی لمحوں میں جو ہے وہ جلسہ بھی کا جو ہے وہ آغاز کر دیا جائے گا۔ اس وقت میں ہمارا جماعت اسلامی کے رہنما ڈاکٹر اسامہ رضی صاحب بھی موجود ہیں، ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ آخر اس جلسے کا مقصد کیا ہے، کیا کہنا چاہیں گے۔ آپ مجھے بتائیں گے جلسے کا اصل مقصد کیا ہے؟ جی دیکھیے، یہ جو شہر کراچی ہے یہ ہر قسم کی لسانی اور مذہبی اکائیوں کا مجموعہ ہے، لیکن جو ہمارے مسائل ہیں وہ سب کے مشترکہ ہیں۔ ہمارے جتنی زندگی کے بنیادی مسائل ہیں وہ سب ایک ہیں، اور بحیثیت مجموعی ہم ایک امت بھی ہیں۔ تو اس اعتبار سے یہ جو اعلان کراچی ہے یہ ان سب کا مشترکہ ایجنڈا ہے۔ جماعت اسلامی کا پلیٹ فارم ان سب کے لیے ایک مشترکہ پلیٹ فارم ہے۔ ہم ان تمام چیزوں سے بالاتر ہو کے، ایون یہ کہ سیاسی وابستگی سے بھی بالاتر ہو کے، کراچی کے جو 3.5 کروڑ عوام ہیں ان کے اس مشترکہ اعلامیے پہ آپ ہمارا ساتھ دیجیے۔ ٹھیک ہے، اچھا آپ کیا سمجھتے ہیں یہ آج کا جلسہ جماعت اسلامی ایک پاور شو کرنے جا رہی ہے، کامیاب ہوگا نہیں ہوگا؟ نہیں، انشاءاللہ کراچی کی تاریخ کا ایک سنگ میل ثابت ہوگا اور ایک نئی تاریخ رقم کرے گا یہ انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے جی، دیکھیں بالکل ان کا کہنا ہے کہ عوام کا سمندر جو ہے وہ یہاں پہ ہوگا جلسے سے جماعت اسلامی۔ بہت شکریہ عطا حسین۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا قد بلوچستان میں مزید بڑھ گیا۔ سابق صدر آصف زرداری سے ملاقات کے بعد بلوچستان کے مزید اہم سیاسی رہنما پیپل پارٹی میں شمولیت اختیار کر چکے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کرنے والوں میں سابق وفاقی وزیر سردار فتح محمد حسنی، سابق صوبائی وزراء نوابزادہ گزین مری اور طاہر محمود شامل ہیں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کے کوارڈینیٹر نوابزادہ جمال رئیسانی، میر فرید رئیسانی، میر عبداللہ راہیجہ اور میر اللہ بخش رند بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا حصہ بن گئے۔ آصف زرداری نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی عام آدمی کے حقوق کے لیے اپنی جدوجہد پر کبھی سمجھوتا نہیں کرے گی۔ بلوچستان اور پیپلز پارٹی کا ایک تاریخی رشتہ ہے۔ بلوچستان کی سیاست میں پاکستان پیپلز پارٹی ایک مضبوط ترین فریق ہے۔ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ بلوچستان کے حقوق کے لیے حقیقی جدوجہد کی ہے۔ پنجاب میں اعتماد کے ووٹ کو ناکام بنانے کے لیے اتحادی حکومت بھی متحرک ہو گئی۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے مشترکہ کمیٹی قائم کر دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے وزیر اعلیٰ پنجاب کے اعتماد کے ووٹ کے معاملے پر مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے اراکین پر مشتمل کمیٹی قائم کر دی۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ، وفاقی وزیر سعد رفیق، وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ عطا تارڑ اور پیپلز پارٹی سے حسن مرتضیٰ کمیٹی میں شامل ہیں۔ کمیٹی پنجاب میں اعتماد کے ووٹ سے متعلق متحرک ہوگی۔ کمیٹی کا مقصد وزیر اعلیٰ کے اعتماد کے ووٹ لینے کے دن تمام قانونی اور آئینی پہلوؤں کا جائزہ لینا ہے۔ اس حوالے سے وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کا مشاورتی اجلاس ہوا، جس میں پنجاب کی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اجلاس کے شرکاء کا کہنا تھا کہ اس بار پرویز الہی اور پی ٹی آئی کو کسی صورت ایوان کا ماحول خراب نہیں کرنے دیں گے۔ ہائی کورٹ میں 11 جنوری کو قانونی ٹیم مکمل تیاری کے ساتھ پیش ہوگی۔ سال 2023 کے لیے بے نظیر کفالت پروگرام کی پہلی سہمائی قسط کا اجرا کل سے ہو رہا ہے۔ 77 لاکھ سے زائد مستحق خاندانوں میں 7,000 روپے فی خاندان تقسیم کیے جائیں گے۔ پہلی سہمائی قسط کا کل تخمینہ 55 ارب روپے سے زائد لگایا گیا ہے۔ اسلام آباد، پنجاب، سندھ اور بلوچستان میں حبیب بینک کے ذریعے رقم تقسیم کی جائے گی۔ حبیب بینک مقرر کردہ ادائیگی مراکز یا بائیو میٹرک اے ٹی ایم سے رقم وصول کی جا سکے گی۔ خیبر پختونخوا، آزاد جموں و کشمیر اور گلگت بلتستان میں بینک الفلاح کے ذریعے رقم تقسیم کی جائے گی۔ بینک الفلاح کے مقرر کردہ ادائیگی مراکز یا بائیو میٹرک اے ٹی ایم سے رقم وصول کی جا سکتی ہے۔ رقوم کی ترسیل میں شفافیت کو ہر قیمت پر یقینی بنایا جائے گا۔ شازیہ باری کہتی ہے کہ مستحق خواتین اپنی پوری رقم وصول کریں اور رسیدیں لینا ہرگز نہ بھولیں۔ ادائیگی کی کوئی فیس نہیں۔ ملک بھر میں بارشوں اور برف باری کی بازگشت۔ جنوری میں کپ کپانے والی سردی انٹری دینے کو ہے تیار۔ بیشتر شہروں میں بادلوں نے ڈیرے ڈال لیے۔ بلوچستان میں بارشوں کا سسٹم داخل ہو گیا۔
शहरी ठठरती सर्दी के लिए हो जाए तैयार। मुल्क भर में अब्रे करम बरसेगा, मौसम हो जाएगा ठंडा ठार। शहर इक़्तिदार समेत शहर शहर बादलों के डेरे ने बरसने का इंदिया दे दिया। मौसम का हाल बताने वालों ने भी बारिशों और बर्फ की खबर सुना दी। आज से मगरिबी हवाओं ने बलोचिस्तान में दाखिल होंगी, जिसके बाद अब्रे रहमत तो बरसेगी ही, साथ बर्फ के गाले भी मौसम को तड़का लगाएंगे। प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक आज सुबह से बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। PDMA का कहना है कि मगरिबी हवाएं दोपहर तक बलाई इलाकों पर असर अंदाज होने का इम्कान है। शहर इक़्तिदार में भी बादल बने मेहमान। अबर आलूद मौसम ने मौसम को यकबस्ता तो किया ही, हसीन भी कर दिया। KPK पंजाब समेत कई शहरों में भी बादल बरसेंगे, जबकि पहाड़ी इलाकों में बर्फ चोटियों को चांदी के ताज पहनाएंगी, जबकि सर्दी भी दोहरी हो जाएगी। पंजाब को धुंधलकों ने परों में छुपा लिया। मैदानी इलाकों में हर मंजर धुंध के पर्दे के पीछे छुप गया। सुरमई धुंधलकों ने रास्ते भी पिनहा कर दिए। शहरियों को एहतियात बरतने की हिदायत कर दी गई। ही धुंध चहार सू पंजाब भर में धुंध की चादर तन गई। सुरमई मंजर से सारे मंजर धुआं धुआं हो गए। सूबाई दारकूमत लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में आज भी धुंध का राज बरकरार है। मोटरवे पुलिस ने मुतादिद मोटरवेज को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में धुंध के बाइस हद निगाह इंतहाई कम रह गई। धुंध के बाइस मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का भी सामना है। धुंध के बाइस मोटरवे M2 इंटरचेंज से पिंडी भटिया तक और M3 फैजपुर से दारखाना तक बंद कर दी गई। मोटरवे M4 मुल्तान से फैसलाबाद तक और M5 मूसावाला से चन्नीगोट तक बंद है। मोटरवे पुलिस का कहना है कि हद्दे निगाह 10 से 5 मीटर होने की वजह से मोटरवेज पर ट्रैफिक को रोका गया है। मोटरवे पुलिस ने शहरियों को हिदायत की है कि दौरान सफर फॉगलाइट्स का इस्तेमाल करें और गैर जरूरी सफर से गुरेज करें। मौसम का हाल बताने वाले कहते हैं बारिश बरसेगी तो ही धुंध छटेगी। आसमान से बरसते सफेद मोतियों ने शिगर का हुस्न दोबाला कर दिया। फलक बोस चोटियां बर्फ से ढक गईं। खून जमा देने वाली सर्दी का राज बरकरार है। इसी पर रिपोर्ट करेंगे फैसल दिलशाद। शिगर में वक्फे वक्फे से बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी है। जमीन पर बिछी सफेद चादर ने हसीन नज़ारों को मजीद निखार दिया। बल्तिस्तान भर में बर्फबारी का खूबसूरत सिलसिला शुरू हो गया। हर सू चांदी फैल गई। बर्फबारी और यकबस्ता हवाओं ने मौसम को ठंडा ठाड़ कर दिया। बरसती बर्फ का दिलकश नज़ारे देखने सैयाह खींचे चले आए। मर्द, खवातीन और बच्चों ने रूई के गालों के मान गिरते बर्फ को खूब एंजॉय किया। मुसलसल बर्फबारी से निज़ाम जिंदगी मुतासिर हो गई। बालाई इलाकों से शिगर का ज़मीनी रास्ता मुनक़ता हो गया। लोग घरों तक महदूद हो गए। महकमा मौसमियात के मुताबिक बर्फबारी का ये सिलसिला आइंदा 24 घंटों तक जारी रहेगा। फैसल दिलशाद, सच न्यूज़, शिगर। साल नौ के पहले हफ्ते में पुलिस का जराइम पेशा अफराद के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन। कत्ल, इक़दाम कत्ल, मंशियात, चोरी और डकैती की वारदातों में मुलव्विस 34 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए हैं। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। साल नौ के पहले हफ्ते में पुलिस का जराइम पेशा अफराद के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन। कत्ल, इक़दाम कत्ल, मंशियात, चोरी और डकैती की वारदातों में मुलव्विस 34 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस हवाले से मजीद जानेंगे सुहेल राजा से। जी सुहेल, क्या तफसीलात हैं? सुहेल, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी बिल्कुल। जी बताइएगा, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, देखें, साल नौ के पहले हफ्ते में पुलिस का जराइम पेशा अफराद के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन सामने है। कत्ल, इक़दाम कत्ल, मंशियात, चोरी और डकैती की वारदातों में मुलव्विस 34 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया है। IG पंजाब की हिदायत पर CP रावलपिंडी ने ये तमाम कार्रवाइयाँ की हैं, जिसमें थाना कैंट से सैकड़ों मर्द खवातीन को नौकरी का ढांचा देने वाले नौकरबाज को भी गिरफ्तार किया है। थाना मुर्गा से गिरोने में आने वाले शहरियों को लूटने वाले गिरोह को 4 रुकनी गैंग से भी गिरफ्तार किया। इसी तरह दीगर शहरों में जो इलाकों में वारदातें करते थे उन डकैत सरगुना को गिरफ्तार करके साथ साथ जो रवाज के इलाके में कब्जा माफिया के खिलाफ भी बड़ा क्रैकडाउन किया है। CP रावलपिंडी की जानिब से ये कार्रवाइयाँ की गई हैं, जिसमें थाना बन्नी से मोटरसाइकिल चोरी और स्ट्रीट क्राइम की जी बहुत शुक्रिया सुहेल। सच न्यूज़ से फिल वक्त इतना ही। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सच न्यूज़।